उत्तर 24 परगना के तूफान पीड़ित इलाकों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हवाई जायजा लिया। हवाई सर्वेक्षण के बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने बशीरहाट कॉलेज में प्रशासनिक बैठक की। गवर्नर, मुख्य सचिव और दूसरे जनप्रतिनिधि इस अवसर पर उपस्थित थे। করব বলে প্ল্যান করেছি। এটা 1 ঘন্টা লাগবে এবং এটার মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যে আমরা স্টার্ট করব রাজারহাট, ভাঙড়, মিনাখা, হাসনাবাদ, সন্দেশখালী 1-2, গোসাবা, বাসন্তী, হিঙ্গলগঞ্জ, যদি পারি হিঙ্গলগঞ্জ দিকটা যায়নি, বাট সন্দেশখালী হিঙ্গলগঞ্জ দুটো এক পাশে, কুলতলি, ওদিকে মথুরাপুর 2, পাথর প্রতিমা, কাকদ্বীপ, কুলপি, ডায়মন্ড হারবার, কলতা, এদিকটা এই রুটটা করেছি। আর কালকে আমি নিজেও দক্ষিণ 24 পরগনা আরেকবার ভিজিট করব, পাথর প্রতিমা, বাসন্তী, গোসাবা, ওই দিকটা কাকদ্বীপ, নামখানা করে আমরা কাকদ্বীপে একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মিটিং করব। আর এরপর আমি নেক্সট উইকে, ঈদটা আছে 25 তারিখে, ঈদ হয়ে যাওয়ার পরে আমি আরও 2-1টা জেলায়, কারণ আমার 7-8টা জেলা খুব ডিভাস্টেটিং হয়েছে, আরও 2-1টা জেলায় আমি যাব এবং আমি মিনিস্টারদের একটা টিম করে দিয়েছি কালকে। সব মিনিস্টাররা বিভিন্ন জেলায় জেলায় থাকবে এবং অফিসারদেরও দায়িত্ব দেওয়া হবে। If you could share your experience during the cyclone, have you seen such a cyclone ever in your life? I have never seen in my life, and when I was in the Secretariat war room, especially myself, Chief Secretary and all the officials from disaster department, even the press people were also there in next room, they also watched the situation. Even I was not able to go to my room. It was just, the vibration was too much, and the sound, the vibration, and in all total, I have never seen this. And the tragedy is that it continues 8 hours. Every time people are asking when it will go from Kolkata, when it will go from North 24 Pargana, when it will go from South 24 Pargana. People are so panicky. And all the phone connection was also not there. Even we are talking to the press sometimes, it was lively, but live telecast was there, but the line was not working, no? Even in my house also, I can't see the TV. I have not only the connection was telephone landline, but no connection with the mobile and all this. That is the problem. Top 3 challenges for next few days for the government. Challenging is to rescue and the restore operation and to help the people. That we will be able to successfully manage it. সেটা তো আমরা পুলিশ সিএস এর লেভেলে টেলিকমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্টের সাথে কথা বলবে টু রেস্টোর ইট ইমিডিয়েটলি। आज 1 साल बाद फिर से साइक्लोन ने भारत के तटीय क्षेत्र को, विशेष करके पूर्वी क्षेत्र को प्रभावित किया और उसमें भी सबसे ज्यादा दुष्परिणाम पश्चिम बंगाल के हमारे भाइयों बहनों को, पश्चिम बंगाल के नागरिकों को, यहां के संपत्ति को बहुत हानि पहुंचाई है। साइक्लोन की संभावनाओं से लेकर के लगातार मैं इससे संबंधित सभी लोगों से संपर्क में था। भारत सरकार भी सतत राज्य सरकार के संपर्क में थी। साइक्लोन का नुकसान कम से कम हो, इसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने चाहिए, उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के भरसक प्रयास किया। लेकिन उसके बावजूद भी करीब करीब 80 लोगों के जीवन हम नहीं बचा पाए। इसका हम सबको दुख है। जिन परिवारों ने अपना स्वजन खोया है, उनके प्रति केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हम सबकी संवेदनाएं हैं और इस संकट की घड़ी में हम उनके साथ हैं। संपत्ति का भी नुकसान काफी होता है, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे पावर सेक्टर हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन हो, चाहे घरों का उजड़ जाना हो, अनेक प्रकार का, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे
व्यापार जगत से लोग जुड़े हुए हो, चाहे खेती क्षेत्र से जुड़े हुए, हर किसी को नुकसान होता है। आज मैंने हवाई निरीक्षण करके बारीकी से इस प्रभावग्रस्त विस्तार को मुख्यमंत्री जी के साथ, गवर्नर श्री के साथ दौरा करके उसको देखा है। अभी राज्य सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से मेरे सामने जो भी प्राथमिक आकलन है उसका ब्यौरा दिया है। हमने तय किया है कि हो सके उतना जल्द डिटेल में सर्वे हो, कृषि का हो, पावर सेक्टर का हो, टेलीकम्युनिकेशन का हो, घरों की जो स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति है, केंद्र सरकार की तरफ से भी तत्काल एक टीम आएगी और वो टीम इन सभी क्षेत्रों में सर्वे करेगी और हम मिल करके रिहेबिलिटेशन हो, रिस्टोरेशन हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, उसकी व्यापक योजना बना करके बंगाल की इस दुख की घड़ी में हम पूरा साथ देंगे, सहयोग देंगे और बंगाल जल्द से जल्द खड़ा हो जाए, बंगाल जल्द से जल्द तेज गति से आगे बढ़े, इसके लिए भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके काम करेगी और जो भी आवश्यकताएं होगी उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार के जो भी नीति नियम है उसका पूरी तरह उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल की मदद में हम खड़े रहेंगे। रानीगंज मंगलपुर इलाके में गुरुवार की देर रात एक सड़क हादसे में एक सिविक वॉलेंटियर समीरन नाग की मौत हो गई। रानीगंज थाने के एएसआई सोइकर दिभोर और सिविक वॉलेंटियर गौतम सिंह बुरी तरह घायल हो गए। एएसआई सोइकर दिभोर के नेतृत्व में एक पुलिस गाड़ी गश्त पर निकली थी। इसी दौरान एक 10 चक्कर वाले डंपर से पुलिस की गाड़ी पीछे से टकरा गई। दोनों घायल पुलिस वालों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। मास्टर कबीरुद्दीन की जानिब से अलविदा जुमा को रेल पार के 100 ठेले वाले और रिक्शे वाले को ईद किट, दलीम और कुछ रुपए तकसीम किए गए। लॉकडाउन के दौरान इससे कबल भी मास्टर कबीरुद्दीन की जानिब से ज़रूरतमंदों को राशन बांटे गए और उनके साथ स्कूल के इन बच्चों ने भी साथ दिया। आज के प्रोग्राम में मास्टर मुख्तार आलम, मोहम्मद अलाउद्दीन खान, मोहम्मद नसीरुद्दीन खासतौर से मौजूद थे। जो है रमज़ान मुबारक के हर जुमा के दिन जो है 700 पैकेट हलीम बना करके तमाम मसाजिद में और इतराफ़ में जो ज़रूरतमंद है उन सबको जो है बांटा जाता है। और इससे पहले जो है रमज़ान शुरू हुआ है, लॉकडाउन में लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी, इसलिए इन लोगों ने 700 अफराद के लिए तैयार किए हैं, जिसमें रिफाइंड तेल था, चना का दाल, उसके बाद जो है खजूर, चीनी, आटा, चावल वगैरह भी बांटे थे। मकसद यही था कि छोटी से हमारी खिदमत है, अल्लाह ताला इसको कबूल कर ले और लॉकडाउन में जो है जो बहुत सारे ज़रूरतमंद जो है अभी परेशान हैं उनकी जो है दुख की घड़ी में थोड़ा सा मैं शामिल हो जाऊँगा। तो ये मकसद के साथ जो है और जो है इन लोगों को दे रहे हैं, मैं दोबारा गुजारिश करता हूँ जो है दुआ करें कि अल्लाह ताला हमको और हिम्मत और सबसे ला करके इस तरह से उनका खिदमत करने का मौका मिलता है। आपका नाम? पूरे देश में लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है, लेकिन राज्य सरकार ने 21 मई से कुछ शर्तों के साथ दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाज़त दी है। हमारे संवाददाता ने शुक्रवार को आसनसोल बाज़ार की सूरत हाल का जायज़ा लिया। बाज़ार में रौनक देखी गई, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा था, दुकानदारों से बातचीत भी की गई। 21 तारीख से दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है राज्य सरकार की तरफ से, तो इस बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है?
चिकनिया दुकान तो खोलेंगे हम लोग, और कस्टमर आएंगे तो सैनिटाइजर मास्क पहने आएगा उसी को देना है सर। मतलब आपकी दुकान में आने वाले कस्टमर का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और उनको सैनिटाइजर देने का प्रावधान आपने रखा है। अच्छा, और इस राज्य से ये जो अभी दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है, तो आपको लगता है कि पिछले 2 महीनों करीब 2 महीनों में जो नुकसान हुआ है उसकी कुछ हद तक भरपाई होगी? कोई भरपाई नहीं है, भरपाई नहीं होगी। वो 2-4-6 महीना ही चलेगा। आपका नाम? दिलीप अग्रवाल। 21 तारीख से राज्य सरकार ने दुकानों को खोलने की इजाज़त दे दी है। तो हम देख रहे हैं कि आपने भी अपनी दुकान खोली है, अपने व्यवसाय को खोला है। तो इस बारे में आपको क्या कहना है कि राज्य सरकार के इस निर्णय के बारे में आपको क्या कहना है? हम लोग को जो है डिस्प्ले लेके कस्टमर को, और जो है वो हाथ में ये लेके दे रहे हैं हम लोग, और कस्टमर तो है भी नहीं ऐसे, कस्टमर की हालत बहुत ख़राब है। ये जो लॉकडाउन हुआ, ये आपके व्यवसाय पे कितना असर पड़ा इसका? काफ़ी असर पड़ा। 20 तारीख से यानी कि कल से दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई थी, और आप जो कि पार्किंग देखते हैं यहाँ का, तो आप फिर से गाड़ियाँ लगनी शुरू हुई हैं क्या पार्किंग? हाँ, फिलहाल आज से थोड़ा बहुत कुछ गाड़ी लगाना चालू हुआ है। मतलब आज से जो देख रहे हैं दुकान कुछ दुकान खुला हुआ। तो लॉकडाउन के दौरान क्या गाड़ियाँ यहाँ नहीं लग रही थी? नहीं, लॉकडाउन के वजह से गाड़ी उड़ी कुछ भी गाड़ी नहीं था, वो 2-4 दिन। तो गाड़ियों को लगना कि आज से शुरू हुआ है? हाँ, आज से थोड़ा बहुत तो आपको लग रहा है कि क्या अब तक जो कमाई आप लोगों का बंद था वो अब से फिर से शुरू हो सकता है? हाँ, कोई ठीक नहीं है, इसका कोई मतलब ये नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम धनंजय। लॉकडाउन का ये चौथा चरण चल रहा है, और 21 तारीख से यानी कि कल से कुछ ढील दी गई है राज्य सरकार द्वारा। कुछ दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। तो आप चूँकि एक व्यवसायी हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? राज्य सरकार की इस निर्णय को हम लोग स्वागत करते हैं कि 2 महीने के लॉकडाउन के बाद भी कुछ एहतियातन बरत के हम लोग को दुकान खोलने की परमिशन दी गई है। हम लोग भी पूरी सावधानी के साथ और सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए हम लोगों ने भी दुकान आज से शुरू की है, जिसमें हम लोगों ने फेस मास्क कंपलसरी कर दिया कि कुछ भी सेल करेंगे तो विदाउट फेस मास्क हम लोग सेल नहीं करेंगे, और दुकान में सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग, मार्किंग में सारे नियम सरकार द्वारा निर्धारित हम लोग पालन कर रहे हैं। तो आप ये जो इतने दिन बंद था दुकान, तो आर्थिक जो नुकसान हुआ है वो तो काफ़ी बहुत बड़ा हुआ होगा वो व्यवसाय? देखिए, आर्थिक नुकसान जो हुआ है वो तो है, पर जान है तो जहान है। अगर ज़िंदगी नहीं रही तो ज़िंदगी रहेगी तो दोबारा और कमा लेंगे, पर जो है इसी को बचा के अब चलना है, और इसी का सब नियम पालन करते हुए कोरोना से हम लोग को लड़ना है। तो आप दूसरे व्यवसायियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संयम बरते इस समय में, मेरे सभी से ये अनुरोध है, और जितना हो सके नियम पालन करके ही आगे बढ़ें। आपका नाम? मैं सुदीप अग्रवाल, व्यवसायी, आसनसोल मार्केट। जानते हैं कि कोरोना के कारण लॉकडाउन जारी था, और तकरीबन 60 दिनों तक दुकानों को बंद करने का फरमान जारी किया गया था, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से 21 तारीख से दुकानों को फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। तो हम देख रहे हैं कि आपने अपने शोरूम को खोला है, तो जाहिर सी बात है ग्राहक भी आएंगे, तो अपने ग्राहकों को क्या क्या एहतियात बरतने के लिए आपने कहा है? ग्राहक आने से पहले हम लोग उसके हाथ में सैनिटाइजर देते हैं। दुकान तो हम लोग साफ़ सुथरा सैनिटाइजर से कर ही दिए हैं। दुकान के लिए हम लोग ये बनाए हैं 6 फीट करके, हम लोग कस्टमर का खड़ा होने के लिए हम लोग बनाए हैं, जैसे कस्टमर को भी कोई डिस्टर्ब नहीं हो, दुकानदार को भी कोई डिस्टर्ब नहीं हो, और आपका बाकी हम लोग सभी कुछ ठीक ठाक करके रखे हैं। और क्या बोले आपको, तो आप कस्टमर का सर्विस भी हम लोग बढ़िया दे रहे हैं। अगर कस्टमर को एक जूता पहनता है, तो अगर जूता पहनने के बाद अगर कस्टमर वो जूता पसंद नहीं किया, तो उसको हम लोग डिस्प्ले में नहीं टांगे, उसको हम लोग अलग रख देंगे। उसको 3 दिन का बाद ही फिर हम लोग साफ़ सुथरा करके उसको हम लोग डिस्प्ले में रखें। डिस्प्ले का माल जो एक बार पहन लेने के बाद कस्टमर हम लोग डिस्प्ले में उसमें नहीं लगाएंगे। जॉइंट एक्शन कमेटी की ओर से विभिन्न दावियों को लेकर बीएनआर के करीब धरना प्रदर्शन किया गया। मजदूर नेता आरसी सिंह ने कहा कि सरकार कोयला खदान को बेचना चाहती है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। जैक की ओर से ज्ञापन भी सौंपा गया। में क्या बात हुई आपसे? सभी सेंट्रल यूनियन के लोग आज यहाँ 10 बजे से धरना पर बैठे हैं।
और हम लोग के सामने भारत सरकार से डिमांड है कि कोयला खदान को पुनः बेचना नहीं चलेगा। 500 ब्लॉक भारत की सरकार बेचने की कोशिश कर रही है, जिसके विरोध में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कोयला खदान का रिजर्व फंड मोदी जी ले लिए और जितना देश को कोयले की जरूरत है उतना श्रमिकों ने दिया। आप लोग देख लीजिए, पूरा हिंदुस्तान बीमारी से त्रस्त है, कोरोना से, लेकिन एक भी कोरोना का मजदूर नहीं मिला जो अपना खून पसीना रोज बहाता है। कोयला खदान में एक साथ मिल के काम करते हैं हम लोग, एक भी मजदूर नहीं मिला। और इस बीमारी की अवस्था में भी देश को जितना कोयले की जरूरत है उतना हम लोगों ने दिया। इसके बावजूद मोदी सरकार हमारी खदानों को बेच रहे हैं। हमारा जो प्रोविडेंट फंड का पैसा है वो ESI में मिला रहे हैं। हमारी जो पेंशन की स्कीम है उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं। हमारा जो मजदूरी लड़ करके हमने लिया है वो आज से 30 साल पहले की मजदूरी पर ले जाना चाहते हैं। 8 घंटा के बदले 12 घंटा काम करना चाहते हैं। कोई श्रम आइन कानून नहीं मानेंगे। इसके विरुद्ध में सेंट्रल यूनियन के नेता लोग, हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और साथ में ये भी डिमांड करते हैं कि इलाका जो हमारा है बहुत सघन इलाका है। यहाँ गांव के रहने वाले, इनकी ज़मीन जा रही है, इनकी जायदाद जा रहा है, इनका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन नहीं हो रहा है। आदिवासियों का अपना कोई जगह नहीं है, ये कोयला के लिए ऐसे ही उजाड़ दिए जा रहे हैं। तो इसके विरुद्ध हम लोग लड़ाई कर रहे हैं कि उनको पुनः स्थापित किया जाए, उनका जो रोज़गार की गारंटी की जाए। और जो ये थोड़ा थोड़ा भीख देते हैं, 2 केजी चावल दे दिया, आधा केजी दाल दे दिया, हम भीख नहीं चाहते हैं, हम रोज़गार चाहते हैं कि हमको रोज़गार दो। हम खून पसीना बहाएंगे, कोई भी बीमारी हमारे पास नहीं आएगी, कोई भी कोरोना या दूसरी कोई बीमारी हमारे पास नहीं आएगी। आप लोग देखिए, उदाहरण है कोयला खदान, एक साथ मिल के काम करते हैं, एक साथ खून का पानी बना के बहाते हैं और एक भी मजदूर हमारा कोरोना से संक्रमित नहीं मिला। हम लोग धन्यवाद देते हैं मजदूरों को जो इस परिस्थिति में देश की हित के लिए लड़ाई किया है। आप लोग जो बैठक किए थे सर कुछ दिन पहले जी, उस बैठक में BMS आपके साथ थे, आज धरना मंच में क्यों नज़र नहीं आ रहे? आज उन्होंने कल हमको कहा कि हमको ऊपर से परमिशन नहीं मिला है। अब ये उनका अंदरूनी मामला है, वो क्या करेंगे नहीं जानते हैं, लेकिन ये डिमांड उनका भी है और आज नहीं तो कल वो फिर साथ में आएंगे, ऊपर उनका परमिशन देगा। हम लोग कोशिश करेंगे समूचे यूनियन को एक साथ में इकट्ठा करने के लिए, उनको भी कोशिश करेंगे कि साथ में रहें। नहीं आएंगे तो ये उनकी मर्जी है, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि साथ में रहें और साथ में रहने से श्रमिक लोगों की लड़ाई ज़रा जोरदार होगी। और अभी तो हम लोग धरना दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री के थ्रू, DM के थ्रू हम लोग डिमांड अपना भेज रहे हैं। देखिए, अगली लड़ाई हमारी बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई होगी, हड़ताल पे जाएंगे और 1-2 दिन का हड़ताल नहीं, हम लोग मोदी सरकार को दांतों चना चबवा देंगे। जब हड़ताल पर जाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि कोयला मजदूरों से टकराना आसान नहीं है। हम लोग दूसरे जगह का रिजर्व फंड नहीं है कि जब मर्जी होगा उठा करके लेके चले जाएंगे, ये नहीं होने देंगे। धन्यवाद। डिबूडी में प्रवासी मजदूरों के लिए 8 दिनों से चल रहा है लंगर खाना। प्रवासी मजदूरों के लिए आश्रय का भी प्रबंध किया गया है। ये लंगर खाना कुल्टी ब्लॉक तृणमूल की ओर से चलाया जा रहा है। 70 नंबर वार्ड के काउंसिलर प्रेमनाथ साव को मानवता के इस काम में पेश देखा गया। MLA उज्ज्वल चटर्जी, मेयर जितेंद्र तिवारी, राम अवतार चौधरी, अंकुश मंडल, विमान दत्ता का भी इस काम में अहम रोल है। चल रहा 8 दिन हुआ, अभी ये कितना दिन चलेंगे? कंटिन्यू चलेगा, मतलब जितना दिन ये परिचय श्रमिक आते रहेगा उतना दिन चलेगा। ये हम लोग का करीब आज 8 दिन से चल रहा है। बंगाल झारखंड सीमा पे 8 दिन से चल रहा है और करीब हम लोग का 50 दिन से आज सारा कुल्टी विधानसभा में चल रहा है। ये आप लोग कैसे करते हैं, मतलब खाना तैयार करके? जी, हम लोग आपस में ही खाना मिल के खाना बना रहे हैं। खाना बनाने के बाद हम लोग डेली 11:30 बजे से 2-2:30 बजे तक खाना खिला रहे हैं। डेली करीब 500, 400, 600 आदमी लोग
जो बाहर से जो लेबर, बाहर से जो आदमी बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं वो लोग खा रहे हैं। आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के महानगरी श्री जितेंद्र तिवारी और कुल्टी विधायक श्री उज्जवल चटर्जी के निर्देश पे हम लोग के कुल्टी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के कन्वेनर एवं काउंसलर प्रेरणा साहू जी के सहयोग से और भी कुछ सोशल वर्कर हैं, उनके सहयोग से हम लोग ये चला रहे हैं। आसनसोल स्वाति फाउंडेशन की ओर से एक बार फिर से 150 बच्चों के दरमियान बिस्किट, हॉर्लिक्स, मास्क, मूड़ी, साबुन बांटे गए। मेयर जितेंद्र तिवारी, काउंसिलर उमा शरफ मुख्य रूप से उपस्थित थे। खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। सामने लिया आज तीसरा चरण है और आज हमारे माननीय मेयर अपने हाथों से 150 बच्चों के बीच में खाद्य सामग्री का वितरण करेंगे। नमस्कार। हमारे कॉर्पोरेशन की काउंसलर, इस वार्ड की काउंसलर और स्वाति फाउंडेशन की प्रमुख उमा सराफ जी, विनोद केडिया जी और भी जो लोग हैं, कोरोना ने बहुत से लोगों से बहुत कुछ छीन लिया। किसी से रोजगार छीन लिया, किसी से जीवन ही छीन लिया। लेकिन इसके साथ साथ कोरोना ने बच्चों से उनकी मुस्कान छीन ली। बच्चे मुस्कुराना भूल गए, क्योंकि बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं उन्हें खेलने का मौका मिलता है, घूमने का मौका मिलता है, मस्ती करने का मौका मिलता है, शरारत करने का मौका मिलता है। यही सारी चीज़ें उनके चेहरे पर मुस्कान लाती हैं। और बच्चों के चेहरे पर जब हम मुस्कान देखते हैं तो हम सारे लोगों के मन में थोड़ा शांति मिलती है। लेकिन कोरोना ने इन बच्चों के मुस्कान को छीन लिया। लेकिन आज ये देखकर अच्छा लग रहा है कि स्वाति फाउंडेशन लगातार किसी दूसरे रास्ते से बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौटाने का प्रयास कर रही है। और इसके लिए मैं उमा सराफ जी को और उनके पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उनके इस नेक काम में, अच्छे काम में मुझे भी आने का मौका मिला, इसके लिए उन लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि स्वाति फाउंडेशन इसी तरह जो समाज सेवा से जुड़े हुए अन्य जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हमेशा लगातार करते आ रहे हैं, वो करते रहेंगे और ईश्वर की कृपा उन लोगों पर बनी रहे। ईश्वर उजाला योजना के तहत हीरापुर गांव में निःशुल्क रूप से नए गैस संयोजन का वितरण हुआ। पश्चिम बंगाल भारतीय युवा मोर्चा के सचिव बापा चटर्जी, बिप्लब चटर्जी, चंदन बावड़ी, तरुण ठाकुर मुख्य रूप से उपस्थित थे। आसनसोल जैसे शहर में एक खूबसूरत से आशियाने का ख्वाब कौन नहीं देखता। इस्माइल में 7 डुप्लेक्सेस इमारत खासकर आपकी पसंद का ख्याल रखते हुए तामीर कराई जा रही है, जहां पार्किंग, कुआं, रिजर्वर की सहूलियात मौजूद है। तो आज ही बुकिंग कराएं। हमारा पता है इस्माइल, साउथ रेंज, सोष्टी नगर, नियर ASN प्ले स्कूल, आसनसोल। माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, AC रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियात मौजूद है। आज ही बुक करें। हमारा पता है आजाद नगर, इस्माइल, आसनसोल। कांटेक्ट करें 9334098841 8768822128। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।